السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم تاریخ انسانی کے ایک ایسے واقعے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس نے صدیوں سے انسان کے دل و دماغ کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں علم، آزمائش، جادو اور ایمان سب ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسے شہر کی طرف جس کا نام سنتے ہی اسرار، طاقت اور خوف کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ستاروں سے قسمت پوچھی جاتی تھی، جنات اور شیاطین سے رابطوں کے دعوے کیے جاتے تھے، اور جادو کو طاقت، عزت اور کامیابی کی کنجی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن معزز ناظرین، یہ صرف جادو کی کہانی نہیں، یہ انسان کی نیت، اس کے اختیار اور اس کے انجام کی کہانی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا واقعہ بیان فرماتے ہیں جو عام تاریخی قصوں سے بالکل مختلف ہے۔ یہ واقعہ کسی بادشاہ کا نہیں، کسی جنگ کا نہیں، بلکہ دو فرشتوں کا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر اتارا۔ ان کے نام تھے ہاروت، ماروت۔ یہی دو نام صدیوں سے سوالات کی آندھی بنے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں آج تک یہ سوال گردش کرتے ہیں، کیا واقعی ہاروت اور ماروت فرشتے تھے یا انسان؟ کیا فرشتے گناہ کر سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے شراب پی؟ کیا وہ کسی عورت کے فتنے میں مبتلا ہوئے؟ کیا انہیں الٹا لٹکا کر عذاب دیا گیا؟ یا یہ سب وہ کہانیاں ہیں جو بعد میں کھڑی گئیں؟ معزز ناظرین، یہ سوالات معمولی نہیں، یہ عقیدے سے جڑے ہوئے سوالات ہیں۔ اسی لیے اگر ان کا جواب جذبات سے دیا جائے، گمراہی، کہانیوں سے دیا جائے، فتنہ، اور بغیر تحقیق کے دیا جائے، عقیدہ خراب۔ بدقسمتی سے ہاروت اور ماروت کے بارے میں جو باتیں آج عام کی جاتی ہے، ان میں سے بہت سی اسرائیلی روایات ہیں، یہودی علماء کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، یا عوامی قصے ہیں جن کا قرآن سے کوئی ثبوت نہیں۔ کسی میں کہا گیا فرشتے عورت پر فریفتہ ہو گئے، کسی میں کہا گیا انہوں نے شراب پی اور قتل کر دیا، اور کسی میں یہ تک کہہ دیا گیا انہیں زمین اور آسمان کے درمیان الٹا لٹکا دیا گیا۔ معزز ناظرین، یہ سب باتیں سنسنی خیز ضرور ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ باتیں قرآن سے ثابت ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں ثابت ہے، یا یہ صرف کہانیاں ہیں جو قصوں میں بدل گئیں؟ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو عام ویڈیو نہیں ہے۔ آج ہم قرآن مجید کی اصل آیت کو سمجھیں گے، مستند تفاسیر کی روشنی میں حقیقت جانیں گے، افسانے اور حقیقت میں فرق کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں کیوں محفوظ فرمایا۔ کیونکہ قرآن قصے سنانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ معزز ناظرین، یہ واقعہ صرف ماضی کی کہانی نہیں، یہ آج کے انسان کے لیے بھی ایک آئینہ ہے۔ آج بھی لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، عصمت بدلنے کے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، اور ایمان کے بجائے طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ آج بابل ایک شہر نہیں، بلکہ ایک سوچ ہے۔ تو ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ آج ہم جانیں گے ہاروت اور ماروت حقیقت میں کون تھے، ان کی آزمائش کیا تھی، اور اس قصے سے ہمیں آج کیا سبق ملتا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت اور اس سے کچھ قبل کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ بابل، جو آج کل عراق میں ہے، اس وقت تہذیب و تمدن کا مرکز تھا، لیکن وہاں ایک بہت بڑی گمراہی پھیل چکی تھی، اور وہ تھی سحر یعنی جادو۔ اس دور میں شیاطین اور جنات کا بہت زور تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت سے پہلے اور ان کے دور میں شیاطین نے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا تھا۔ یہ شیاطین آسمانوں کی طرف جاتے، وہاں فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سنتے، اور پھر ان میں 100 جھوٹ ملا کر زمین پر کاہنوں اور جادوگروں کو بتا دیتے۔ جب وہ باتیں سچ ہوتی تو لوگ ان جادوگروں کو خدا ماننے لگتے۔ آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ اللہ کے معجزات اور جادو کے کرتبوں میں فرق بھول گئے۔ معاشرے میں جادو اس قدر رچ بس گیا کہ لوگ صحیح مذہب اور نجات کا ذریعہ سمجھنے لگے۔
यहाँ तारीख का वो नाजुक मोड़ आता है जहां हक और बातिल की सरहदें धुंधला देने की कोशिश की गई। ये वो लम्हा था जब सिर्फ एक नबी पर इल्जाम नहीं लगाया जा रहा था, बल्कि नबूवत के तसव्वुर पर हमला किया जा रहा था। ये इल्जाम लगाने वाले कोई आम लोग नहीं थे बल्कि वो थे यहूदी और बनी इसराइल के बाज गुमराह गिरोह, जो इस वक्त अपनी ही किताबों में तहरीफ कर चुके थे और अल्लाह की हिदायत को दुनियावी मफादात के बदले बेच चुके थे। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी हुकूमत अता फरमाई जो इससे पहले और इसके बाद किसी को न मिली। उन हवाओं पर इख्तियार दिया गया, किन्नात उनके ताबे किए गए, परिंदे और जानवर उनके हुक्म में थे और अदलो हिकमत उनकी पहचान थी। ये सब अल्लाह की कुदरत के मौजज़ात थे, न कि किसी जादू का नतीजा। यहूदियों का घनाउना इल्जाम। लेकिन नाजरीन, जब बनी इसराइल ने यह गैर मामूली सल्तनत देखी तो ईमान लाने के बजाय हसद ने उनके दिलों को जला दिया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, नऊजुबिल्लाह, सुलेमान नबी नहीं है, यह सब कुछ जादू के जोर पर है। वो एक बहुत बड़े जादूगर है। यह इल्जाम महज एक शख्स पर नहीं था, यह वही नबूवत और मौजज़े के इनकार के मुतरादिफ था। यह इल्जाम इसलिए भी खतरनाक था क्योंकि जादू शैतानी अमल है, नबूवत रब्बानी अता है, जादू धोखा है, मौजज़ा हक की दलील है। जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो आम इंसान के लिए सच और झूठ में फर्क खत्म हो जाता है। यही शयातीन का असल मकसद था। तफासीर में आता है कि शयातीन ने एक निहायत मक्काराना चाल चली। उन्होंने जादू के मंतर, शैतानी अमलियात और बातिल उलूम सबको किताबों की सूरत में लिखा और हजरत सुलेमान की कुर्सी के नीचे छुपा दिया। बाज रवायात में दफन करने का जिक्र भी आता है। हजरत सुलेमान को इसकी खबर न थी क्योंकि वो नबी थे, जादूगर नहीं। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो शयातीन ने वो किताबें निकाल ली और लोगों के सामने लाकर ऐलान किया, देखो यही वो इल्म है जिसके जरिए सुलेमान तुम पर हुकूमत करते थे। नाजरीन, ये वो लम्हा था जब जादू को नबूवत से जोड़ा गया और शैतानों ने अपने कुफर को नबी के नाम से बेचना चाहा। बहुत से लोग इस धोखे में आ गए। अल्लाह की तरफ से फैसला कुन ऐलान, लेकिन अल्लाह ताला ने इस फितने को खामोशी से बर्दाश्त नहीं किया। अल्लाह ने कुरान मजीद में साफ दो टोक और हमेशा के लिए ऐलान फरमा दिया, वमा कफरा सुलेमान, सुलेमान ने कुफर नहीं किया। ये ऐलान सिर्फ हजरत सुलेमान की बरियत नहीं था, बल्कि कयामत तक के लिए असूल था। कुरान वाज़ेह करता है, कुफर सुलेमान ने नहीं किया, बल्कि शयातीन ने किया, जो लोगों को जादू सिखाते थे और नबूवत के नाम पर फितना फैलाते थे। यूं कुरान ने साफ नबी को पाक साबित किया, जादू को शैतानी करार दिया और सच को हमेशा के लिए महफूज कर दिया। नाज़रीन कराम, अब हम इस किस्से के सबसे हसास, नाजुक और गलत फहमियों से भरे हुए हिस्से की तरफ आते हैं, यानी ये सवाल कि हारूत और मारूत कौन थे और आखिर अल्लाह ताला ने इन्हें क्यों जमीन पर भेजा। ये वो मकाम है जहां जरा सी लफ्जिश इंसान को अफसानों, गुलू और अकीदे की खराबी की तरफ ले जाती है। इसीलिए यहां सिर्फ कुरान, मुस्तनद अहादीस और मोतबर तफासीर की रोशनी में बात करना जरूरी है, न कि अवामी किस्सों या सनसनी खेज कहानियों की बुनियाद पर। गलत फहमियों का पसमंजर नाजरीन, बदकिस्मती से हारूत और मारूत के बारे में जो किस्से आज आम हैं, उनमें अक्सर इसराइली रवायात से आए हैं यहूदी किस्सा गोओं की बयान करदा बातें रहे और बाद में अवामी दास्तानों का हिस्सा बन गईं। इन किस्सों में दावा किया जाता है कि फरिश्तों ने शराब पी, कत्ल का इर्तकाब किया, एक औरत जहरा के इश्क में मुब्तला हो गए और फिर उन्हें उल्टा लटकाकर अजाब दिया गया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये सब बातें न कुरान से साबित है न सही हदीस से, बल्कि जलीलुल क़दर मुफस्सिरीन खुसूसन इमाम इब्ने कसीर वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि ये रवायात नाकाबिले एतमाद हैं और अकीदे के बाब में इन पर एतमाद नहीं किया जा सकता। मुस्तनद मुअक्कफ, हारूत और मारूत कौन थे? कुरान मजीद सूरह अल-बकरा आयत 102 में वाज़ेह तौर पर फरमाता है कि अल्लाह ताला ने बाबिल में 2 फरिश्ते उतारे जिनके नाम हारूत और मारूत थे। ये फरिश्ते थे लेकिन नाफरमान नहीं, गुनाहगार नहीं और किसी शहवत या दुनियावी ख्वाहिश के असीर नहीं, बल्कि वो अल्लाह के हुक्म के ताबे थे जैसा कि तमाम फरिश्ते होते हैं। बाबिल में इनकी आमद का असल मकसद नाजरीन ये समझना बहुत जरूरी है कि हारूत और मारूत को जादू फैलाने के लिए नहीं भेजा गया था, बल्कि जादू के फितने को बेनकाब करने के लिए भेजा गया था। इस वक्त बाबिल में जादू आम हो चुका था, जादूगर वली और निजात दहिंदा समझे जाने लगे थे। लोग जादू को मुअज्जिज़ा समझ बैठे थे। यही सबसे बड़ा फितना था, आजमाइश का निजाम। अल्लाह ताला ने हारूत और मारूत को एक आजमाइश बनाकर भेजा।
वो जो भी शख्स उनके पास आता सबसे पहले वो वाज़ेह तनबीह करते, सिर्फ आजमाइश है, बस कुफ्र ना करना। ये जुमला खुद कुरान में मौजूद है, यानी हम तुम्हें जादू की हकीकत बताएंगे, लेकिन इसे इख्तियार करना तुम्हारा अपना फैसला होगा, और अगर तुमने इसे इख्तियार किया तो जिम्मेदारी तुम पर होगी। यही असल इम्तिहान था। वो लोगों को क्या सिखाते थे? हारूत और मारूत जादू की हकीकत बताते थे, जादू के तरीक़ेकार की वजाहत करते थे, और सबसे बढ़कर ये वाजे करते थे कि जादू धोखा है, जादू शैतानी इल्म है, जादू कुफ्र तक ले जाता है, जबकि मौजज़ा अल्लाह की तरफ से निशानी है, ताकि लोग नबी और जादूगर में फर्क कर सके, हक और बातिल को पहचान सके और धोखे में ना आए। इख्तियार इंसान के हाथ में था। नाजरीन, यहां एक बहुत बड़ा उसूल सामने आता है। अल्लाह जबरदस्ती गुमराह नहीं करता। हारूत और मारूत किसी को जादू सीखने पर मजबूर नहीं करते थे, ना ही किसी से कुछ छुपाते थे। वो पहले खबरदार करते थे, फिर इंसान खुद फैसला करता था। कुछ लोग खबरदार होकर रुक गए और बच गए, और कुछ लोग ताकत, हसद या दुनियावी फायदे के लिए जानबूझकर जादू की तरफ गए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये दोनों फरिश्ते किसी को उस वक्त तक कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये वार्निंग ना दे दे, इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। बार बार इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर, हम तो महज आजमाइश हैं, लिहाजा तुम इस इल्म को गलत इस्तेमाल करके या इसे जायज समझकर काफिर ना बन जाना। लेकिन लोग क्या करते थे? लोग उनकी नसीहत को नजरअंदाज कर देते और उनसे वो इल्म सीखते जिसके जरिए वो मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई डाल सके। पीजो, सोचने का मकाम है। जादू का सबसे बड़ा वार खानदानी निजाम पर होता है। शैतान का सबसे पसंदीदा अमल यही है कि मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाए। बाबल के लोग उन फरिश्तों से इल्म सीखकर इसे शर के लिए इस्तेमाल करने लगे, हालांकि फरिश्तों ने उन्हें खबरदार किया था कि इस इल्म का अंजाम बुरा है। अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि वो जादूगर अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये फरिश्ते अपनी ड्यूटी पूरी करके वापस चले गए, लेकिन लोगों ने इस इल्म को फितना बना लिया। सबसे बड़ी दलील कुरान मजीद खुद है। यह किस्सा के फरिश्तों ने शराब पी, कत्ल किया और बुत को सजदा किया, कुरान के बुनियादी अकीदे से टकराता है। अल्लाह ताला कुरान में फरिश्तों की शान बयान करते हुए फरमाता है, ब्लॉकवेट संजातीन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वो फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते जो हुक्म उन्हें दिया जाए, और वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। सूरत उत-तहरीम 6। दोख, फरिश्तों के अंदर अल्लाह ने शहवत और वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है रखी ही नहीं है। गुनाह वो करता है जिसके अंदर ख्वाहिश हो। जब फरिश्तों में गुनाह का मादा ही नहीं, तो हारूत और मारूत शराब कैसे पी सकते थे या जिना की तरफ कैसे माइल हो सकते थे? ये अकली और नकली दोनों लिहाज से नामुमकिन है। ये मनगढ़ंत किस्सा ज़हरा नामी औरत और कुएं में उल्टा लटकना दरअसल इसराइलियात में से है। इसराइलियात से मुराद वो किस्से कहानियां जो बनी इसराइल यहूदियों की किताबों या उनके लोगों के जरिए मुसलमानों में पहुंचे। इस्लाम के इब्तिदाई दौर में जब यहूदी मुसलमान हुए, जैसे काब अखबार वगैरह, तो उन्होंने अपनी पुरानी किताबों के किस्से सुनाना शुरू किए। कुछ लोगों ने तहकीक के बगैर उन्हें लिख लिया। ये किस्सा कि ज़हरा औरत को आसमान पर उठा लिया गया और वो सितारा बन गई, साइंसी और मजहबी दोनों एतबार से मज़हका खेज है। अल्लाह ताला जानिया और कातला औरत को सितारा बनाकर आसमान पर क्यों सजाएगा? इमाम इब्ने कसीर, तफसीर इब्ने कसीर, उन्होंने इस वाक़े को नकल करने के बाद साफ लिखा है कि यह किस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, बल्कि अखबार की बयान करदा इसराइली रवायात है और उनमें से अक्सर झूठ है। इमाम राजी, तफसीर कबीर, उन्होंने सख्त अल्फाज में इसकी तरदीद की है। वो फरमाते हैं कि ये मानना कि फरिश्तों ने शिर्क और कत्ल किया इस्लाम के खिलाफ है। मुफ्ती मोहम्मद शफी, मुआरिफुल कुरान, वो लिखते हैं कि हारूत और मारूत को सजा के लिए नहीं बल्कि आजमाइश बनाकर भेजा गया था। अगर वो सजा भुगत रहे होते और कुनवे में कैद होते
तो लोगों को जादू कैसे सिखाते, जबकि कुरान कहता है वो लोगों को सिखाते थे। सूरह बकरा आयत 102 में अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि उन्होंने गुनाह किया, बल्कि अल्लाह ने फरमाया और वो दोनों हारूत और मारूत किसी को कुछ ना सिखाते थे कि हम तो सिर्फ आजमाइश है, लिहाजा तुम जादू सीख कर काफिर ना बनो। नतीजा अगर वो खुद गुनाहगार होते और सजा पा रहे होते तो वो दूसरों को नसीहत करने के काबिल कैसे होते। उनका लोगों को खबरदार करना इस बात की दलील है कि वो अल्लाह के हुक्म से ड्यूटी पर थे, ना कि अपनी ख्वाहिशात के गुलाम होकर गुनाह कर रहे थे। खुलासा तो नाजरीन, साबित हुआ कि हारूत और मारूत मासूम फरिश्ते थे। उनके बारे में ये कहना कि उन्होंने शराब पी या किसी औरत के इश्क में मुब्तला हुए, ये यहूदियों की फैलाई हुई झूठी कहानियां हैं जिनका मकसद फरिश्तों की पाकीज़गी को दागदार करना था। बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि फरिश्ते गुनाहों से पाक है और वो सिर्फ वही करते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है। इल्म और हिकमत की बातें फैलाना सदका जारिया है। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मजीद ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आमिर इल्म और हिकमत को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें।